Hello everyone, this is Dr. Mary Radna Para from Department of Botany. Uh, as yesterday we learned about sampling technique and what is the difference between sampling technique and sampling design. Why sampling design is necessary for your research work and what is the difference between the sampling technique. Okay, so as yesterday we saw सैम्पलिंग डिज़ाइन आपके रिसर्च में किस तरह का आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग विच इज़ बेस्ट सूटेड, जो आपके सैम्पलिंग डिज़ाइन आपके काम को सबसे बेहतर तरीके से सूट करता है उसे आप सैम्पल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. सो देयर आर मैनी डिफरेंट टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन in life science or in botanical science or plant science. When we study sampling technique, there are so many different type of sampling technique to measure vegetation. आपको प्लांट वेजिटेशन नापने के लिए टेक्निक होती है, इकोलॉजिकल स्टडी के लिए टेक्निक होती है, आपको केमिकल एनालिसिस करने के लिए टेक्निक होती है. सो देयर आर डिफरेंट वास्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, बट these techniques are covered or classified under the sampling design in two major types, that is probability or random sampling and non-probability. So what is sampling technique? Sampling is a process of selecting a subset, as I earlier told, subset or predetermined number and any kind of observation. Any kind of observation, it could be soil sample, water sample, plant sample, number of sample, different type of sample size. So आपकी सैम्पलिंग डेटा के अकॉर्डिंग और आपके प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग आपके सैम्पल डिफरेंट वैरायटी वेरिएबल्स के अनुसार बदलते रहेंगे. ये सॉइल सैंपल भी हो सकते हैं, ये वाटर सैंपल भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकती है. देयर इट कुड बी वास्ट नंबर ऑफ population or any kind of observation. Okay, so it is pretty common technique wherein we run experiment and draw conclusion about the population or the set of any group. Okay, या आप इंडिविजुअल भी किसी सैंपल को इकट्ठा करेंगे, बट यू कैन नॉट मेक एन कंपैरेटिवली ऑब्जर्वेशन. अगर आप इंडिविजुअल किसी चीज के बारे में एनालिसिस करते हैं तो आप उसको कंपैरेटिव स्टडी में नहीं कर सकते. बट व्हेन वी डू कंपैरेटिव स्टडी और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन या किसी चीज के बारे में तुलनात्मक स्टडी जब हम करते हैं तब हम उसे सेट्स में मीन्स ग्रुप में हम उसे स्टडी करते हैं. तब क्या होता है, दैट is known as population or group or any kind of observation that we study predetermined in the subset. Okay, तो हम सेट में जब किसी चीज का स्टडी करते हैं, वो चाहे पौधों के ग्रुप हो या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी हो या एनी टाइप ऑफ ट्रेट, किसी भी तरह के गुण किसी भी चीज की स्टडी करनी हो, चाहे वो आपके सॉइल सैंपल में सॉइल के एलिमेंट्स चेक करने हैं, तब आप क्या करेंगे, उस चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जिसे आप एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल और द analyzing of any sample or an element is known as sampling technique. So without any need having study of entire population, in this lecture we are going through what are the different type of sampling method. As हमने पुरानी क्लास में इंट्रोडक्शन में देखा था सैम्पलिंग टेक्निक और सैम्पलिंग डिजाइन में क्या डिफरेंट है, हमने आज अभी ये एक आउट ड्रॉ किया what are the major type of sample technique. One is probability sampling and another is non-probability sampling. Probability sampling, we choose sample based on theory of probability. That means it could be on the probability theory, the chances of occurrence could be or not could be. For example, lottery system or chit system,
when we play in chit or lottery game, then it is the chance of probability or chance of coming uh, of head and tail. Okay, when we study about the coin probability, head and tail कितनी बार आता है, उस तरीके से on the basis of theory of probability हम probability sampling देखते हैं. It could be there are different type of sampling in probability. That one liner, if we say in plant science probability, or we can say random. तो random sampling हम देखेंगे कि there are 5 type of sampling, that is simple random sampling, and this is another method, systematic sampling, stratified sampling, and then cluster sampling and area sampling, and there are different type of sample. Now in on a screen you can see non-probability and non-random sample. That these are judgmental sampling, convenience sampling, quota sampling, panel sampling, and snowball sampling. So these are the different type of sampling. And in next slide we are going to see how population are calculated in plant science or in forestry or anything related to vegetation. Okay, so here we see in next slide, this is a figure that shows topography of study area and occurrence of species. जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब आप वेजिटेशन सैम्पलिंग की बात करते हैं, there are various and numerous type of sampling type in botany, botanical science or plant science, but there through these example we can study research methodology. What are the different type of sampling? So जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग बात करते हैं कि बात जब हम करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो फिगर है टोपोग्राफी ऑफ स्टडी एरिया एंड अकरेंस ऑफ स्पीशीज, ये शो करती है एरिया स्टडी के बारे में, एरिया सैम्पलिंग के बारे में. जब आपको किसी पॉपुलेशन को, चाहे वो पौधे की पॉपुलेशन हो या किसी भी तरह की पॉपुलेशन हो, जब आपको स्टडी करना है, जैसे कि आजकल आप वेरियस न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ पानी का बहाव कम है, या सैटेलाइट स्टडी से आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको जानकारी मिलती है. उसी प्रकार आप देखेंगे कि बॉटनिकल साइंस में भी या प्लांट साइंस में भी वेजिटेशन स्टडी की आजकल एडवांस टेक्निक यूज़ की जाती है. सैम्पलिंग कहाँ पे किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, आप इससे ये बात क्लियर कर सकते हैं कि हिमालयन रीजन में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के रीजन में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं. तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेज दैट शोज डिफरेंट स्ट्रैटेजिकली सैम्पलिंग मेथड अलग अलग जगह पे किस तरीके से किया जाता है. रैंडम सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग कहीं पे भी किसी भी जगह पे किया जाता है. बट the second one, the another most common sampling used in botany is stratified sampling. That is, जो फर्स्ट फिगर है उसमें आप देखेंगे जीपीएस पोजीशन मार्क है और लाइटली ओवर शेडेड है लाइट रेड कलर से. दैट इज द एरिया ऑफ सैम्पलिंग, और इसे स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटिफाइड, पहले 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपने कितने अंतराल में, अलग अलग डिफरेंट अंतराल में कहाँ पे आपने स्ट्रैटेजिकली सैम्पलिंग किया है. दैट इज स्ट्रैटाफाइड, यानी एक के बाद दूसरा स्ट्रैटा आपने कवर किया है.
The next figure shows again systematic sampling and the cluster sampling. The fourth figure shows the cluster sampling, and the figure which is rounded in black over line, this is sampling done of बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व. इसमें आप देखेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को शो किया गया है. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यानी एक ही टाइम पे अलग अलग स्टेजेस ऑफ वेजिटेशन. मीन्स आपने एक ही जगह पे आपने 3 ग्रुप टारगेट कर लिए. दैट इज हायर प्लांट यानी बड़े बड़े पेड़, उसके बाद हर्बेशियस प्लांट यानी शाकवन या छोटे पौधे, और उसके बाद आपने उसी जगह पे एल्गी की भी कलेक्शन कर लिया यानी एल्गी का भी आपने रिकॉर्ड बना लिया. तो एक ही जगह पे आपने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करी. अगर सपोज आप फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि आप किसी जगह पे मोर देन 1 टारगेट ग्रुप करेंगे तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाती है. सो फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट what type of sampling, vegetation sampling is done in different population. Theoretically आपको स्टडी नॉलेज आपको बुक में डेफिनेशन वाइज पता चल जाएगी, पर जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो किस तरीके से किस एरिया पे कितना सैंपल करना है, ये जब वेजिटेशन सैम्पलिंग की बात आती है तब ये चीज़ें उस पर अप्लाई होती हैं. सो दिस इज द सेकंड स्लाइड रिगार्डिंग योर sampling method. What type of different sampling is done.